जो बाइडेन आ गए और आइए उनका संबोधन सुनते हैं। Well, good afternoon. Yesterday, Vladimir Putin recognized two regions of Ukraine as independent states. And he bizarrely asserted that these regions are no longer part of Ukraine and their sovereign territory. To put it simply, Russia just announced that it is carving out a big chunk of Ukraine. Last night, Putin authorized Russian forces to deploy into these regions. Today, he asserted that these regions are actually extend deeper than the two areas he recognized, claiming large areas currently under the jurisdiction of the Ukrainian government. He's setting up a rationale to take more territory by force, in my view. And if we listened to his speech last night, and many of you did, I know, he's setting up a rationale to go much further. This is the beginning of a Russian invasion of Ukraine, as he indicated and asked permission to be able to do from his Duma. So let's begin to, I'm going to begin to impose sanctions in response far beyond the steps we and our allies and partners implemented in 2014. And if Russia goes further with this invasion, we stand prepared to go further as with sanctions. Who in the Lord's name does Putin think gives him the right to declare new so-called countries on territory that belong to his neighbors? This is a flagrant violation of international law and demands a firm response from the international community. Over the last few months, we've coordinated closely with our NATO allies and partners in Europe and around the world to prepare that response. We've said all along, and I've told Putin to his face more than a month ago, that we would act together. And the moment Russia moved against Ukraine, Russia has now undeniably moved against Ukraine by declaring these independent states. So today, I'm announcing the first tranche of sanctions to impose costs on Russia in response to their actions yesterday. These have been closely coordinated with our allies and partners and will continue to escalate sanctions if Russia escalates. We're implementing full blocking sanctions on two large Russian financial institutions, VEB and their military bank. We're implementing comprehensive sanctions on Russia's sovereign debt. That means we've cut off Russia's government from Western financing. It can no longer raise money from the West and cannot trade in its new debt on our markets or European markets either. Starting tomorrow and continuing in the days ahead, we'll also impose sanctions on Russia's elites and their family members. They share in the corrupt gains of the Kremlin policies and should share in the pain as well. And because of Russia's actions, we've worked with Germany to ensure Nord Stream 2 will not, as I promised, will not move forward. As Russia contemplates its next move, we have our next move prepared as well. Russia will pay an even steeper price if it continues its aggression, including additional sanctions. The United States will continue to provide defensive assistance to Ukraine in the meantime, and will continue to reinforce and reassure our NATO allies. Today, in response to Russia's admission that it will not withdraw its forces from Belarus, I have authorized additional movements of U.S. forces and equipment already stationed in Europe to strengthen our Baltic allies, Estonia, Latvia, and Lithuania. Let me be clear, these are totally defensive moves on our part. We have no intention of fighting Russia. We want to send an unmistakable message, though, that the United States, together with our allies, will defend every inch of NATO territory and abide by the commitments we made to NATO. We still believe that Russia is poised to go much further in launching a massive military attack against Ukraine. Hope I'm wrong about that, hope we're wrong about that, but Russia has only escalated its threat against the rest of Ukrainian territory, including major cities and including the capital city of Kyiv. There are still well over 150,000 Russian troops surrounding Ukraine. And as I said, Russian forces remain positioned in Belarus to attack Ukraine from the north, including warplanes and offensive missile systems. Russia's moved troops closer to Ukraine's border with Russia. Russia's naval vessels are maneuvering in the Black Sea to Ukraine's south, including amphibious assault ships, missile cruisers, and submarines. Russia's moved supplies of blood and medical equipment into position on their border. You don't need blood unless you plan on starting a war.
Over the last few days, we've seen much of the playbook that Secretary Blinken laid out last week in the United Nations Security Council come to pass. A major increase in military provocations and false flag events along the line of contact in the Donbass. Dramatically staged, conveniently on-camera meeting of Putin's Security Council to grandstand for the Russian public. And now political provocation of recognizing sovereign Ukrainian territory as so-called independent republics in clear violation, again, of international law. President Putin has sought authorization from the Russian parliament to use military force outside of Russian territory. And this set the stage for further pretexts of further provocations by Russia to try to justify further military action. None of us should be fooled. None of us will be fooled. There is no justification. Further Russian assault in Ukraine remains a severe threat in the days ahead. And if Russia proceeds, it is Russia and Russia alone that bears the responsibility. As we respond, my administration is using every tool at our disposal to protect American businesses and consumers from rising prices at the pump. As I said last week, defending freedom will have cost for us as well and here at home. We need to be honest about that. But as we do this, I'm going to take robust action to make sure the pain of our sanctions is targeted at the Russian economy, not ours. We're closely monitoring energy supplies for any disruption. We're executing a plan in coordination with major oil-producing consumers and producers toward a collective investment to secure stability in global energy supplies. This will blunt gas prices. I want to limit the pain the American people are feeling at the gas pump. This is critical to me. In the last few days, I've been in constant contact with European leaders, including with Ukrainian President Zelensky. Vice President Harris met in person with the leaders in Germany over the weekend at the Munich conference, including President Zelensky. At every step, we have shown the United States and our allies and partners are working in unison, which he hasn't been counting on, Mr. Putin. We're united in our support of Ukraine. We are united in our opposition to Russian aggression. And we're united in our resolve to defend our NATO alliance. And we're united in our understanding of the urgency and seriousness of the threat Russia is making to global peace and stability. Yesterday, the world heard clearly the full extent of Vladimir Putin's twisted rewrite of history, going back more than a century, as he waxed eloquently, noting that, well, I'm not going to go into it, but nothing in Putin's lengthy remarks indicate any interest in pursuing real dialogue on European security in the year 2022. He directly attacked Ukraine's right to exist. He indirectly threatened territory formerly held by Russia, including nations that today are thriving democracies and members of NATO. He explicitly threatened war unless his extreme demands were met. And there is no question that Russia is the aggressor. So we're clear-eyed about the challenges we're facing. Nonetheless, there is still time to avert the worst-case scenario that will bring untold suffering to millions of people if they move as suggested. The United States and our allies and partners remain open to diplomacy if it is serious. When all is said and done, we're going to judge Russia by its actions, not its words. And whatever Russia does next, we're ready to respond with unity, clarity, and conviction. We'll probably have more to say about this as it moves on. I'm hoping diplomacy is still available. Thank you all very much. कि रूस को रोकने के लिए एक्शन युद्ध हमारी मंशा नहीं, लेकिन हम रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। और जो बाइडेन ने कहा कि वो रूस के 2 आर्थिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। आज कल से ही शुरुआत हो जाएगी, इसी बिगिनिंग टुमारो। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके इस फैसले में उनके जितने भी यूरोपीय साथी हैं और देश हैं वो उनके साथ हैं और उनके साथ राय लेने के बाद ही प्रतिबंध का फैसला लिया गया है। और ये आर्थिक प्रतिबंध 2014 में जब रूस ने
क्रीमिया को अपना हिस्सा बनाया था यूक्रेन पर हमला करके, और उसके बाद जो अमेरिका ने लगाए थे और पश्चिमी दुनिया ने, उन आर्थिक प्रतिबंधों से ज्यादा कठोर होने जा रहे हैं जो कल से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश जो है वो लगाने जा रहे हैं। रूस के ऊपर दो आर्थिक संगठन जो हैं रूस के सबसे बड़े, उनके ऊपर प्रतिबंध अमेरिका ने घोषित कर दिए हैं, और उन्होंने कहा कि अगर रूस बाज नहीं आया और उसने एस्केलेट किया, यानी हालात को और आगे बढ़ाया, युद्ध जैसे हालात बनाए, युद्ध किया या यूक्रेन में और आगे हमले बढ़ाए, तो फिर हम इन प्रतिबंधों को और कड़ा करते जाएंगे। रूस के दो संस्थानों को आर्थिक मदद तत्काल प्रभाव से यानी कल से ही रोकी जाएगी। युद्ध जो है वो हमारे लिए इस वक्त हम युद्ध में नहीं जाना चाहते, और अभी भी हम कूटनीति यानी अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को मौका देना चाहते हैं, बशर्ते रूस अपनी हरकतों से बाज आए। और कल जो रूस ने किया वो यूक्रेन की संप्रभुता पर एक सीधा हमला था, और ये करने का कतई कोई हक पुतिन को नहीं था, रूस को नहीं था, व्लादिमीर पुतिन को नहीं था। और क्योंकि रूस ने ऐसा किया तो उसके मद्देनजर हम रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं, और दो संस्थान जो रूस के हैं उनको हम तत्काल प्रभाव से कल से आर्थिक जो मदद है या उनसे जो आर्थिक हमारा कनेक्शन है उसको तोड़ने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ धीरज कॉल जुड़ गए हैं। धीरज, जो बाइडेन ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध रूस को लेकर अभी उसका ऐलान किया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। कैन यू हियर मी? बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको। देखिए हम लोग ये बहुत पहले से एंटिसिपेट कर रहे थे। अगर हम यूक्रेन की आबादी देखें तो 44 मिलियन है, कीव में अप्रोक्सीमेटली 2.8 मिलियन लोग रहते हैं, और जो एरिया डोनेस्क और लुगान्स्क का एरिया है जहां पे फ्रैक्शन ऑफ है, जहां पे रशिया सपोर्ट करता है उनके फाइटर्स को, उस एरिया के अंदर वो स्ट्रेंथन करेंगे। और हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे, जैसे कि सुबह जर्मनी के चांसलर ने डिक्लेयर कर दिया कि उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिससे कि गैस की प्राइसेस कम हो सकती थी, उसको उन्होंने शट डाउन कर दिया। और ये एक मास्टर स्ट्रोक है, इसके इकोनॉमिकल, जियोपॉलिटिकल बहुत बड़े इंप्लीकेशंस होंगे, जर्मनी की इकोनॉमी के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन धीरज, उससे पहले मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जिन दो संस्थानों पर जो बाइडेन ने अभी आर्थिक प्रतिबंध का ऐलान किया, रूसी संस्थानों पर, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए और इसका क्या असर रूस पर होने जा रहा है? जरूर, देखिए मैं फाइनेंस से जुड़ा हूं तो मैं बताता हूं। WED बैंक और मिलिट्री बैंक, ये दो संस्थान हैं जहां पे अगर आप बात करें रशिया की, तो जब भी वो ट्रांजैक्शंस करता है इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ, जो पेमेंट के मेथड्स हैं वो इनके थ्रू चैनल होते हैं। यहाँ पे डिफेंस एक्सपर्ट्स पते हैं, वो बताएंगे आपको जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर है। और एक और तीसरी बात मैं आपके शो पे ऐलान करना चाहता हूं, जो नेक्स्ट सैंक्शंस आएंगी वो स्विफ्ट बैंक, स्विफ्ट कोड, मतलब बैंकों पर, दो बड़े बैंक, मिलिट्री बैंक एंड WED बैंक, जिसकी वजह से आप समझिए जो तीसरी सैंक्शंस, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, स्विफ्ट सैंक्शंस, अगर किसी देश पे स्विफ्ट सैंक्शन ब्लॉक कर दी गई तो वो ट्रांजैक्शन ही नहीं कर पाएगा डॉलर्स में। तो ये तीसरी सैंक्शन इन पैकेट रखी हुई है अमेरिका ने तैयार, और उसके लगने के पूरे चांस हैं। क्योंकि अभी आप समझ नहीं पा रही हैं जो गेम है डोनेस्क और लुगान्स्क, मैं यूक्रेन रह चुका हूं, वहां पे जाता हूं, मेरे बहुत मित्र हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ पे है जिनसे मैं बात करता हूं। ऑल्दो दीज आर सेम पीपल लाइक रशिया, लेकिन वो बहुत ही स्वाभिमानी लोग हैं। और ये देखिए डोनेस्क और लुगान्स्क से होते हुए रशिया चाह रहा है कि ब्लैक सी का पूरा एरिया कवर कर ले और ओडेसा तक, ओडेसा में। अच्छा, ये बताइए धीरज, ये बताइए कि ये जो अभी जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं तो 2014 से कितने ज्यादा कड़े ये हैं और क्यों हैं? जो बाइडेन ने कहा कि उनसे भी कड़े। 2014 के मुकाबले ये हाथी और चींटी का कंपैरिजन है। 2014 के जो सैंक्शंस थे वो आई वॉश था, दिस इज रियल सैंक्शन। अगर ये सैंक्शंस का एक स्टेप और बढ़ा तो रशिया की ट्रेडिंग जो उसके देखिए 400 रशिया की इकोनॉमी है 1.4 ट्रिलियन, जिसमें से 489 बिलियन ऑयल और गैस से आता है, और उसका पैसा इन बैंक्स के थ्रू आता है और उन तक पहुंचता है। अगर ये पैसा फ्रीज हो गया और स्विफ्ट कोड फ्रीज हो गया तो उनकी इकोनॉमी घुटनों पे आ जाएगी। अमेरिका इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस इसीलिए कर रहा है ताकि एक बुलेट फायर किए बगैर पुतिन के ऊपर प्रेशर पड़े और वो वापस बैक ट्रैक करे, क्योंकि लिटवा, लाटविया, एस्टोनिया
नेटो कंट्रीज हैं, इसीलिए अमेरिका वहां पे और डिप्लॉय करेगा, अपना फुटप्रिंट वहां बढ़ाएगा, यूरोप बढ़ाएगा। और जर्मनी जो सबसे बड़ा रोड़ा था, ये बहुत बड़ी मूवमेंट हुई है सुबह, उसने वो रोड़ा हटा के अपनी गैस की जो लाइन है, जो उसकी कॉस्ट को कम कर देती, जो बाईपास करती है यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन और पोलैंड को एक टैक्स देना पड़ता है गैस के लिए, उसको बाईपास करके रशिया ने डायरेक्ट एक्सेस लिया, उसको भी उन्होंने विड्रॉ कर दिया है अगेंस्ट द प्रेशर। तो जर्मनी ने भी वर्ल्ड प्रेशर के सामने झुक चुका है। अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ रशिया। अब देखना है कि पुतिन क्या करेंगे। ठीक है, आसिफ दाऊदी, रशिया के लिए कितनी बड़ी मुसीबत ये आर्थिक प्रतिबंध? ये बहुत बड़ी मुसीबत है, जैसा कि अभी धीरज भाई कह रहे थे, उन्होंने भी चीज़ों को बताया, और इन चीज़ों को हम बाकायदा एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, एंटिसिपेट भी कर रहे थे, और हमने डिस्कशन में देखा कि किस तरह से उसी डायरेक्शन में बात गई है, और इस पे बहुत बड़ा असर होने वाला है। क्योंकि जब आप किसी को इकोनॉमिकली वीक करते हैं तो आप समझिए कि उसको आपको बंदूक से या गोलियों से मारने की जरूरत नहीं पड़ती। एक तरफ जो पुतिन ने ये गेम खेला, जो उसने कहा कि हम किसी भी तरह से गोली नहीं चलाएंगे, अटैक नहीं करेंगे, और हमने पूरे यूक्रेन को 3 हिस्से में बांट दिया, और ये एक बहुत बड़ा फैसला, और मास्टर स्ट्रोक उसको कहा जाने लगा। अब उधर से दूसरा मास्टर स्ट्रोक इस तरीके से आ गया है कि हमने आपको स्टेप वाइज, फेज वाइज, आप अगर इनकी स्पीच को देखें, उसको एनालाइज करें, तो मैंने जैसे आपके इसके एड्रेस के पहले कहा था कि कैसे ये एड्रेस बहुत ही एग्रेसिव होने वाला है जो बाइडेन की तरफ से, और उस एग्रेशन में ये अपने रेपुटेशन को देखते हुए वो तमाम चीजों को बात करेंगे, और आखिर में ये डिप्लोमेसी के डोर को ओपन रखेंगे, जो हमने अभी आपके शो के साथ हम सब ने इसको डिस्कस किया, और बिल्कुल हमारे इस डिस्कशन के उसी लाइन पे ये बातें चलती गई, और कैसे सैंक्शंस की बात आई, और कैसे एक एग्रेशन दिखाने के साथ साथ हमने दिखाया कि हम किसी भी तरह से पीछे नहीं हट रहे हैं, और रशिया को बाकायदा उसमें ये कहा गया कि आप इसको इनिशिएट कर रहे हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी, क्योंकि हमने कहा कि उन्होंने ये कहा कि अगर रशिया ने और एस्केलेट किया, हालात को और खराब किया, तो हम ये डिपेंड करेगा कि वो कितना एस्केलेट करते हैं, हमारे प्रतिबंध उतने ही और आगे तीव्र होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। एग्जैक्टली आपने एक सवाल किया था मुझसे भी और रक्षा विशेषज्ञ से भी कि किस तरह से आप देखें कि वो नेटो का मेंबर नहीं है और इसमें अमेरिका क्या कर सकता है, जिसपे हम लोगों ने डिस्कस किया। उस पर मैं थोड़ी सी बात रखना चाहूंगा, जिसपे मैंने भी आपसे मैं आपके पास आती हूँ सिर्फ अपनी बात पूरी कर लो। इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन है, जिसको बार बार अभी जो बाइडेन ने भी मेंशन किया, और नेटो का वो मेंबर नहीं है यूक्रेन, इसके बेस पे ये किसी भी तरह से कोई बड़ा एक्शन नहीं इनिशिएट कर सकते थे। तो लिहाजा इन्होंने सारी जिम्मेदारी उनके कोर्ट में फिर से बॉल को रख दिया कि आप ही सब चीज कर रहे हो, आप ही प्रोवोक कर रहे हो, और अब हम ये तमाम एक्शन जो लेने जा रहे हैं ये सिर्फ प्रोवोकेशन की वजह से है, रिटेलिएशन की वजह से। और एक बहुत अहम चीज जो उनकी स्पीच में थी, जो उन्होंने मेंशन किया कि यूक्रेन के अंदर जो राइट टू लिव है ना, राइट टू एग्जिस्ट, आपने उसको भी चैलेंज किया है उन तमाम पुतिन को इशारा करते हुए, शुरुआत ही उन्होंने इससे की थी लिया कि यूक्रेन के जो लोग हैं वहां पे जो उनको रहने की जो एक उनका अधिकार है और उनको जीने का जो अधिकार है, उस पे आपने अटैक किया है। तो हर तरह से सारी चीजें वापस उनकी तरफ चली गई हैं, और अब ये कह रहे हैं कि हम जो भी करेंगे, और हमने तमाम अपने अलाइड जो हमारे फोर्सेस हैं या टीम्स हैं, या ईयू की बात करें, नेटो की बात करें, सबसे हमने बात की है, यहाँ तक कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी हम, और इवन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी उनके कांटेक्ट में है। तो इन तमाम चीजों पे इन्होंने जो एक बैकग्राउंड दिया है कि सभी के साथ कंसेंसस बना के। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ, हमारे रक्षा विशेषज्ञों के पास भी चलूंगी। धीरज, आप एक मैप दिखा रहे थे, कुछ बताना चाह रहे हैं? हाँ जी, ये देखिए, मैं आपको यूक्रेन का मैप दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक चीज है जो मैं एक्चुअली दिखाना चाह रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप डोनेस्क, ये डोनेस्क है, अगर आप देख पा रहे हैं, और डोनेस्क से नीचे इनकी आर्मी आएगी, और ये जो क्रीमिया आप पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ तक ओडेसा, सॉरी आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट, हाँ ये ओडेसा का आप जो एरिया देख रहे हैं, ये ब्लैक सी और अस्कास का सी है, जहां से यूक्रेन का सारा व्हीट एक्सपोर्ट होता है। और अगर इन्होंने इसको ओडेसा को भी ऑक्यूपाई कर लिया एक पैंसर मूवमेंट की तरफ, क्योंकि रशिया के 1,90,000 ट्रूप्स पोस्टेड है बेलारूस में, और इस एरिया में अगर आप देखें तो यहां से वो नीचे जाएंगे और इस एरिया तक उनका मूवमेंट होगा। अगर आप देखें तो इस एरिया, अगर ओडेसा को ऑक्यूपाई कर लिया तो बहुत बड़ा इशू आएगा, लैंड लॉक्ड कंट्री बन जाएगा यूक्रेन, और वहां पे पॉपुलेशन भी ज्यादा है, और खार्कव एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड हब है यूक्रेन के लिए, जहां से उसकी जीडीपी का
सिग्निफिकेंट डेवलप होता है। लेकिन इस टाइम वर्ल्ड का फोकस कीव पे है। मुझे नहीं लगता वो कीव में जाएंगे, मुझे लगता है वो सदर्न एरिया में आएंगे और कनेक्ट करेंगे ओडेसा को और आगे तक ब्लैक सी और अस्का सी को लेंगे। इस पे बहुत ज्यादा डिबेट इस टाइम अमेरिका, व्हाइट हाउस और पेंटागन में चल रहा है।